Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawahar. Friends, I welcome you all for the TYBSc Inorganic Chemistry. We are now in semester 6 and we have already started with the fourth unit, that is some selected topics. So in this we have started with the topic metallurgy, and in our last lecture we have discussed about the metallurgy, its significance and various definitions like mineral ore and process of metallurgy. Then we have also discussed about the different type of metallurgical operations like pyrometallurgy, electrometallurgy and hydrometallurgy. Then friends, we have seen the various steps involved in metallurgy. So when you carry out the metallurgical processes, there are various steps you have to carry out, okay, and they are very essential for the extraction of metals from the ores. So they are concentration of ore, calcination, roasting, reduction of metallic oxide to metal and refining of metals, okay. So in the first step, that is concentration of ore, it is basically carried out for the removal of unwanted material from the ore. So we all know that ore is nothing but earth crust or soil kind of things. So from that it is very important and it is also very crucial to remove the unwanted things, which is also called as matrix or gong, and then you can actually start the process of extraction of metal or separation of metal. So before starting any other process you have to concentrate that ore, right. So concentration has also various steps or processes. The very first step is mining, then hand picking, then crushing and grinding, then you have to carry out gravity separation, finally electromagnetic separation and froth flotation process. So see, actually there are near about 5 main steps, and among that 5 main steps, in only concentration of ore there are 6 steps. So we will take the idea of these 6 steps. So very first step is called as mining. Okay, mining is the process where you have to take out the ore from the mines. Okay, so you can see here the diagram where the actual mines are, and using the various instruments like JCBs and various extractors, you have to dig the soil and you have to take out the ore from the mine. Okay, so when the ore occur near the surface of earth, it can be directly taken out. Okay, so that superficial is called as open pit mining process, but sometime the ore is present at deep area, or we can say greater depth of earth, then it is called as deep mining. So depending upon where you are getting your ore, whether it is at surface or whether it is at little bit depth, the mining procedures are based on that. Okay, so you can see it is a little bit tedious process and only machineries can do this very easily. So in earlier days it was really very difficult to do the mining, but nowadays with the help of various instruments the mining procedure is now very easy. Okay, then the second step is called as hand picking. Okay, hand picking is nothing but the removal of impurities present and which are very distinct from the ore. जो चीज़ें आपके ओर से इजीली सेपरेट की जा सकती है या डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट दिखाई देती है, उन्हें हम इजीली हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. सो यू कैन सी हियर द वर्कर्स आर hand picking the ore. They are separating the materials like glass or stones etc. by hand picking method. So these impurities are large in size and they are quite distinguishable from your ore. So it is applicable to ore having specific color and the gong material is of different color. Okay, तो अगर impurities और आपका ore अलग अलग कलर में है तो हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. So gold ore and cinnabar, that is we can say HGS, these type of ores are separated using hand picking method. So this is very
easy method, and but also it is very time taking method because you are handling the ore manually. क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग मशीन से नहीं कर सकते, some kind of manual work is required, and this type of procedure is seen in hand picking. Okay, then the third step is called as crushing and grinding. So you can see here very huge machineries are used. They are the wall crushers, or we can say jaw crushers. Using these crushers, the ore which is actually soil, it is very well crushed and grind. तो हम लोग कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले जो सैंपल हमारे पास है, यू हैव ऑब्जर्व दिस इन योर लैब्स ऑल्सो, जो सैंपल हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन अ वेरी powder form or grounded form. So when you grind it, then their reactivity also increases, and because of that the further methods become easy. Okay, so for mining or for concentration of ore, the very important step is crushing. Okay, so the big lumps of the ore are crushed into smaller pieces with the help of jaw crushers or with the help of hammering mill. ओके तो अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अंदर ये जो बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, दैट इज़ अ जॉ क्रशर, और वी कैन ऑल्सो यूज़ हैमर मिल। इसके अंदर हैमरिंग से या फिर क्रशर के हेल्प से पूरा जो मटेरियल है, ओवर मटेरियल, उसको ग्राइंड कर देते हैं, है ना। So the process of grinding the crushed ore into fine powder with the help of stamp mill is also called as pulverization. तो कभी कभी स्टैम्प मिल्स के यूज़ से हम लोग ओर को क्रश कर सकते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज पल्वराइजेशन. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो क्वाइट टीडियस मेथड, क्योंकि इतनी सारी अमाउंट में इतना सारा और आपको ग्राइंड करना है. सो वेरी ह्यूज काइंड ऑफ मशीनरीज आर यूज्ड ओवर हियर in this step. Okay, then the next step is called as gravity separation. This is very essential and very crucial step. Here the gravity separation method is also called as hydraulic washing method. Okay, तो ये मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, you can see the diagram. The method have the concentration of ore based upon difference in specific gravities of मेटालिक ओर एंड मैट्रिक्स पार्टिकल. तो ग्रेविटी का मीनिंग हम सबको पता है, हम लोगों ने पहले भी देखा था मेथड ऑफ सेपरेशन में, कि ग्रेविटी इज़ वन प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच एवरी पार्टिकल हैज़ इट्स ओन मास. ओके, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ ओर इज़ क्वाइट हेवी वेटेड, तो उसका वेट ज़्यादा रहेगा, और उसके साथ जो मैट्रिक्स है, जो गोंग है, इम्प्यूरिटीज़ है, उसका वेट अभी कम रहेगा. तो पहले 3 मेथड से तो हमने थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन कर लिया है. माइनिंग, हैंड पिकिंग से जो रिमूवेबल इम्प्यूरिटीज़ थी उसको निकाल दिया, और फिर क्रश कर दिया. अभी क्रशिंग के बाद भी उसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ होगा, और अभी एक बार उसको क्रश कर दिया तो यू कैनॉट फाइंड आउट द इम्प्यूरिटीज़ विथ योर ओनली आइज़. सो अभी हम लोगों को सारे केमिकल मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे. सो वन ऑफ दैट इज़ ग्रेविटी सेपरेशन. तो यहाँ पे हम लोग अगेन फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, कि जिसमें देयर विल बी डिफरेंस इन वेट और मास ऑफ ओर पार्टिकल एंड द impurities. So with the help of gravitational force, what we will do, the metal particles are generally heavier than the gong associated with them. So the particle of ore after grinding is agitated with water or washed with a running stream of water. तो हम लोग जो सारा ओवर जो अभी ग्राइंड कर दिया है उसको वाटर के साथ वॉश करेंगे. सो द हेवी ओवर विल सेटल डाउन, and the lighter impurities which are light in weight, they are washed away with the water. तो हम सबको पता है कि जो हेवी पार्टिकल है वो वाटर के साथ फ्लो नहीं करेगा, वो वहीं पे रह जाएगा, और जो लाइट वेटेड इम्प्यूरिटीज़ है वो सारी निकल जाएंगी. So this type of method is commonly used for the oxide ores such as hematite, or it is also used for copper, silver or gold type of things. Okay,
So two main type of methods in gravity separations are used. They are seen in this diagram. So they can be hydraulic classifier method or they can be Whiffley-Rebel method. Okay. So in case of hydraulic classifier method, which is shown over here, there is big container type of thing. ओके उस कंटेनर के ऊपर से हम लोग पाउडर्ड ओवर पोर कर देते हैं. ओके तो जो ओवर हम लोगों ने ग्राइंड किया था इन अर्लियर स्टेज, इट इज़ पोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कंटेनर. ओके इट इज़ ड्रॉप्ड इनटू दिस पर्टिकुलर रिजर्वायर, और ये रिजर्वायर जो है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक क्लासीफायर. ओके देन अ पावरफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस फ्रॉम द बॉटम ऑफ दिस रिजर्वायर. तो आप लोग देख सकते हो कि नीचे से लेफ़्ट साइड से हम लोग उसके अंदर वाटर सप्लाई दे रहे हैं. तो अच्छे से बहुत ज़ोर से हम लोग वाटर उसके अंदर सर्कुलेट करते हैं. सो द क्रश्ड ओवर जो हम लोगों ने पहले स्टेप में किया था, इट इज़ मिक्सड विद द स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर. देन व्हाट विल हैपन, द लाइट पार्टिकल ऑफ द गॉन्ग विल वॉश्ड अवे. तो हम लोग देखेंगे कि अगर पानी नीचे से अंदर आ रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर ये जो कंटेनर है या रिजर्वायर है उसके अंदर जो लाइट वेटेड पार्टिकल है मैट्रिक्स के या गॉन्ग के, वो ऊपर फ्लोट होने लगेंगे, है ना, तैरने लगेंगे. और जो ऊपर ऊपर है उसको हम लोग रिमूव करेंगे. सो राइट हैंड साइड ऊपर आप देख सकते हो गॉन्ग इज रिमूव्ड. तो जो लाइट वेटेड पार्टिकल्स है जो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उसको हम लोग इजीली निकाल देंगे. सो व्हाट यू विल गेट नाउ आफ्टर दैट, द कोनिकल शेप ऑफ रिजर्वायर. इसका शेप जो है वो कैसा है, इट इज़ कोनिकल शेप. तो इट विल रिड्यूस द ओवर टू गेट फ्लोटेड विद वाटर. वैसे भी तो वो फ्लोट नहीं होगा क्योंकि वो हैवी है, तो वो नीचे ही बैठेगा. एंड दैट वे द सस्पेंशन ऑफ ओवर विल बी फॉर्म एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वायर. तो हम लोग देखेंगे कि एट द एक्सट्रीम बॉटम जो एक बॉक्स टाइप है उसके अंदर अभी हम लोगों को कॉन्सेंट्रेटेड ओवर मिल रहा है. तो पानी जो है वो ट्यूब के साथ ऊपर जा रहा है, तो वो उस आउटलेट से बाहर नहीं निकलेगा. ओनली द कॉन्सेंट्रेटेड ओवर विल बी गैदर्ड एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर रिजर्वायर. और ये जो हेवियर मेटल पार्टिकल्स है जो सेटल डाउन हो चुके, इट कैन बी सेपरेटेड ईजिली फ्रॉम द एक्सट्रीम बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक. तो ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. यहाँ से हम लोग जो फ्लोटिंग या फिर लाइट वेट इम्प्यूरिटीज़ है जो अभी क्रश करने के बाद किसी और मेथड से रिमूव नहीं हो सकती, उसे हम लोग इस टेक्निक के साथ रिमूव कर सकते हैं. देन द सेकंड टेक्निक इन दिस कैन बी विफली टेबल मेथड. सो ये विफली टेबल जो है इट इज़ स्लैंटिंग टाइप ऑफ वाइब्रेटिंग वुडन टेबल. तो उसके अंदर बहुत सारे वुडन ब्लॉक्स रखे हुए होते हैं या फिर रिफल्स लगे हुए होते हैं. सो व्हेन यू पुट पाउडर ओवर इन दिस, अगेन यू हैव टू रन अ हेवी स्ट्रीम ऑफ वाटर. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ रिजर्वायर आपको एक वुडन रिजर्वायर लेना है. उसके अंदर रिफल्स मतलब छोटे छोटे वुडन के ब्लॉक लगे हुए हैं और उसके अंदर आप लोगों को ओवर भर देना है एंड वाटर यू हैव टू agitate inside that. So the heavy stream of water, what will happen, again the heavy ore particle will abstract or it will create abstract to the metal particles. लेकिन जो light impurities है वो अपने आप को resist नहीं कर पाएंगे and it will flow away with the stream of water. तो जो ore particles है they are collected from that wooden obstacles or wooden blocks and then they are concentrated and taken away. So this way gravity separation method is very useful to separate or concentrate the ore particle. फिर उसके बाद जो आती है it is also very important method and here you have to apply the electromagnetic separation technique. अभी देखो पहले स्टेप में हम लोगों ने वो इम्प्यूरिटी रिमूव कर दी जो पानी के साथ बह सकती थी, दैट मीन्स दे वेयर लाइट वेटेड पार्टिकल्स. लेकिन अभी वो हो जाने के बाद देयर कैन बी सम इम्प्यूरिटीज़ विच आर अट्रैक्टेड टू अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन. तो हम लोग अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि हम
ओवर में से मैक्सिमम इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो इन दिस वे यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन you can separate the gong particles which have magnetic properties in them. Okay, so electromagnetic separator consists of a leather or brass conveyor belt moving over two rollers. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो आपको सर्कुलर टाइप के रोलर्स दिख रहे हैं, उसके ऊपर से एक बेल्ट रन हो रहा है। तो ये जो रोलर्स है उनके ऊपर से जो बेल्ट हम लोग सर्कुलेट करेंगे, उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर देंगे। ओके, तो क्या होगा कि द पाउडर्ड ओवर व्हेन इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ये जो है दैट इज़ काइंड ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम। इसके ऊपर तो पूरा कंटेनर लगा होगा, लेकिन इफ़ यू राइट द कंटेनर, आपको अंदर का डायग्राम नहीं दिखेगा। सो कंटेनर के अंदर ऐसे दो रोलर्स लगे होंगे, उसके ऊपर से कन्वेयर बेल्ट लगा होगा, उसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो व्हेन यू पोर पाउडर ओवर ऑन दैट, व्हाट विल हैपन, द पाउडर ओवर विल स्टार्ट रोटेटिंग ऑन दिस बेल्ट। तो अभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है वो रोलर के साथ या मैग्नेटिक बेल्ट के साथ ज़्यादा तेज़ी से रन करेगा। एंड नीचे आप लोग देख सकते हो देर आर टू कंटेनर्स। तो जो कंटेनर राइट हैंड साइड में है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाले जो इम्प्योरिटीज़ है वो गिरेंगे, बिकॉज दे विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस रोटेटिंग बेल्ट्स। लेकिन जिसके अंदर नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपको पता है कि अंदर की तरफ खींच जाएंगे, एंड देयरफॉर इन द कंटेनर ऑफ नॉन मैग्नेटिक टाइप they will get collected in that particular left hand side container. So this way the magnetic portion of the ore will get stick to the belt due to the force of attraction, and it will fall near to the roller, while the non-magnetic impurity, it will fall further off. So for example, suppose you take ferromagnetic ore of iron such as hematite or chromite, then what will happen, being magnetic properties, it can be separated using the non-magnetic selenious gong from magnetic separation technique. So this way using this particular electromagnetic separation हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ओवर और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टाइप। ये उल्टा भी हो सकता है, कभी कभी हम लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इम्प्योरिटीज़ मिलेंगे और नॉन मैग्नेटिक टाइप का ओवर हो सकता है। सो यू हैव टू फर्स्ट चूज़ विच इज़ योर रिक्वायर्ड मटेरियल, मतलब ओवर मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, और उस तरीके से आपको जो नीचे कंटेनर है उसमें आपको ओवर और इम्प्योरिटीज सेपरेट करके मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, और वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओवर यूजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद जो है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। अभी हम लोगों ने पानी से सेपरेट कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक यूज़ करके सेपरेट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज़ द फ्रोथ दैट इज़ फोम। तो पानी और डिटर्जेंट या पानी और सम फोमिंग एजेंट ऐड करने के वजह से देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोम और फ्रोथ, and by this also some kind of impurities are removed. Okay, so fourth flotation technique is used to remove the gong from low grade sulfide kind of ores. Okay, so this method is based on different weighting properties of ore and gong particles by liquid. मतलब जो ore particle है वो अलग तरीके से पानी में वेट होते हैं, गीले होते हैं, और जो आपका गोंग है, मैट्रिक्स है, वो अलग तरीके से या अलग टाइप में पानी के साथ वेट होता है। ओके, तो जैसे ही आप लोग पानी और फोमिंग एजेंट का एक मिक्सचर बनाते हो, हम सबको पता है कि देखो अगर हम किसी चीज़ पे पानी डालते हैं, जैसे कि पेपर है या कपड़ा है पतला, तो वो इजीली गीला हो जाएगा। लेकिन कोई बड़ा मटेरियल है जैसे कि जिसकी थिकनिंग ज़्यादा है, तो उसको गीला होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से इफ़ इट्स सरफेस इज़ ग्रीसी, है ना, उसके ऊपर ऑयल का या ग्रीस का कोटिंग है, तो उसको गीला होने में और ज़्यादा टाइम लगता है।
उसी तरह से अगर कॉटन का क्लॉथ है तो वो जल्दी गीला हो जाएगा, अगर डेनिम का क्लॉथ है, जीन्स वाला मटेरियल, तो उसको गीला होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा. सो दिस वे the froth flotation method is applied when there is different properties of ore and gong to get weighted. So the process is having various procedure like जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड ओवर इज इंट्रोड्यूस इनटू वाटर कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल लाइक पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल. तो व्हेन ये मिक्सचर सोप के साथ या फोमिंग एजेंट के साथ हम लोग एजिटेट करते हैं, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ फोम. ओके, और फिर ये फोम के अंदर आपका ओर मटेरियल और जो मैट्रिक्स मटेरियल है वो गीला हो जाता है. ओके, एंड देन इट विल स्टार्ट सेपरेटिंग आउट. तो हाउ दिस टेक्निक इज़ एक्चुअली यूज और इसके साथ कौन कौन से ओवर हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, that we will see in our next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.